محرم الحرام کے پرامن انعقاد کے لیے ضلع انتظامیہ کے انتظامات مکمل، جامع سیکیورٹی اور مانیٹرنگ پلان تیار۔ محرم میں 5235 مجالس اور 1553 جلوس منعقد ہوں گے۔ 303 حساس مقامات کے 24 گھنٹے نگرانی، جلوسوں کے راستوں پر 1500 اضافی کیمرے نصب کر دیے گئے۔ تمام 19 ٹیچنگ اور 2 DHQ اسپتال الرٹ، 55 ایمبولینسز، 300 موٹر بائک ایمبولینسز اور 77 کلینک آن ویلز تیار ہیں۔ محرم الحرام کے پرامن انعقاد کے لیے ضلع انتظامیہ نے جامع انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ ڈی سی آفس میں قائم ڈسٹرکٹ کنٹرول روم سے 303 حساس پوائنٹس کی مسلسل نگرانی کی جائے گی۔ ہوم ڈپارٹمنٹ اور سیف سٹیز کے کنٹرول روم بھی فعال رہیں گے۔ جلوسوں اور مجالس کے روٹس پر CCTV کیمروں کے ذریعے مانیٹرنگ، واک تھرو انتظامات یقینی بنائے گئے ہیں۔ طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام ٹیچنگ اور DHQ ہسپتالوں کو الرٹ رکھا گیا ہے۔ عارضی اسپتال، کلینک آن ویلز اور میڈیکل کیمپس بھی قائم کیے جائیں گے۔ 14 کے قریب ڈپارٹمنٹس کے ریپس یہاں پہ موجود ہیں ہمارے پاس، اور سب کا اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ لائزون ہے۔ جتنے بھی ٹیچنگ ہاسپٹل ہیں لاہور میں 19 کے قریب، وہ تمام کے تمام الرٹ پہ ہوں گے۔ 2 DHQ ہیں وہ الرٹ پہ ہوں گے۔ تمام جو عملہ وہاں پہ موجود ہوگا، 10 ایڈیشنل بیڈ ہر ہاسپٹل میں صرف اس پرپس کے لیے ہم نے ڈیڈیکیٹ کیے ہیں۔ ستھرا پنجاب کے 1500 ورکرز صفائی پر مامور ہوں گے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی سبیلوں پر فراہم کی جانے والی اشیاء خورنوش کی چیکنگ کرے گی۔ انتظامیہ کے مطابق امن و امان برقرار رکھنے اور عزاداروں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام ادارے ہمہ وقت متحرک رہیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ طاہر جمیل خان، سٹی 42۔ اندرونی شہر سے نکلنے والے 7 محرم کے جلوس اپنی منزل پر پہنچ کر ختم ہو گئے۔ 7 محرم الحرام کے موقع پر اندرون شہر کے مختلف امام بارگاہوں سے شبیہ ذوالجناح کی زیارات کے جلوس برآمد ہوئے۔ بھاٹی گیٹ، موری گیٹ، دہلی گیٹ اور موچی گیٹ کی امام بارگاہوں سے نکلنے والے جلوسوں میں عزاداروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور عقیدت اور احترام کا اظہار کیا۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں پر رواں دواں ہے، جبکہ سیکیورٹی کے پیش نظر جلوسوں کے اطراف کی گلیوں اور راستوں کو بند رکھا گیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ زائرات کے تمام جلوس رات کے اپنی امام بارگاہوں میں واپس پہنچ کر اختتام پذیر ہو گئے۔ اب یہاں پر بات کریں گے روڈا پر محکمہ خزانہ کی کڑی گرفت۔ 150 ارب کی گرانٹ مسترد۔ روڈا کی مالی کارکردگی پر سنگین اعتراضات سامنے آئے ہیں۔ اربوں روپے کا ریلیف روک دیا گیا، پرانا قرض واپس نہیں کیا تو نیا کیسے ملے گا؟ پہلے دیا گیا 5 ارب کا قرض بھی واپس نہیں کیا، محکمہ خزانہ نے روڈا کو آئینہ دکھا دیا۔ محکمہ خزانہ نے روڈا کی مالی کارکردگی پر سنگین اعتراضات اٹھا دیے۔ اربوں روپے کا ریلیف روک دیا گیا، پرانا قرض واپس نہیں کیا، نیا کیسے ملے گا؟ پہلے دیا گیا 5 ارب کا قرض بھی واپس نہیں کیا، محکمہ خزانہ نے روڈا کو آئینہ دکھا دیا۔ محکمہ خزانہ نے آمدن، اخراجات اور قرض واپسی کا پلان مانگ لیا۔ پنجاب کابینہ نے راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی روڈا کے لیے فاسٹ ٹریک انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی مد میں 150 ارب روپے گرانٹ ان ایڈ دینے کی تجویز مسترد کر دی۔ پنجاب کابینہ نے گرانٹ کے بجائے 20 ارب روپے قرض کی منظوری دے دی ہے۔ 20 ارب میں سے 10 ارب روپے رواں مالی سال اور باقی 10 ارب روپے آئندہ مالی سال جاری کیے جائیں گے۔ دستاویزات کے مطابق روڈا نے دریائے راوی کی چینلائزیشن، فلڈ پروٹیکشن، سڑکوں، پلوں، سیوریج اور دیگر انفراسٹرکچر منصوبوں کے لیے 3 سال میں 150 ارب روپے مانگے تھے۔ تاہم محکمہ خزانہ نے روڈا کی مالی کارکردگی، آمدن، اخراجات، فنڈز کے استعمال اور قرض واپسی کے پلان پر سنگین اعتراضات اٹھا دیے۔ محکمہ خزانہ نے کابینہ کو بتایا کہ روڈا کو پہلے بھی 5 ارب روپے قرض دیا گیا تھا، مگر اس کی اصل رقم یا سود کی کوئی ادائیگی تاحال نہیں کی گئی، جبکہ روڈا نے منصوبوں کی اصل لاگت اور نئی لاگت کا تقابلی ریکارڈ بھی فراہم نہیں کیا۔ محکمہ خزانہ نے ریور ٹریننگ ورکس کی لاگت میں اضافے پر بھی وضاحت طلب کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ روڈا کے معمول کے ترقیاتی منصوبوں کو صوبائی ترقیاتی پروگرام سے چلانا مالی نظم و ضبط کے خلاف ہوگا، اس لیے روڈا کو اپنے وسائل، نجی سرمایہ کاری اور لینڈ بیسڈ ریونیو کے ذریعے منصوبے مکمل کرنے چاہیے۔ محکمہ خزانہ کی سفارش پر حکومت نے روڈا کو فنڈنگ گرانٹ کے بجائے قابل واپسی قرض کی صورت میں دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹوکن ٹیکس نادہندگان کے لیے بڑا جھٹکا، 8.5 لاکھ گاڑیاں سسٹم میں بلاک ہیں، 9 ارب کے نادہندگان کی رجسٹریشن فوری طور پر معطل۔ مالی سال کے آخری 7 دنوں میں آر یا پار کی جنگ، 8.5 لاکھ گاڑیوں کا ڈیٹا لاک،
सड़क पर निकलते ही जब्त करने की तैयारियां शुरू कर दी गई। टोकन न दहिंदगान के लिए बुरी खबर, 8.5 लाख गाड़ियां सिस्टम में ब्लॉक करके रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी गई। माली साल के आखिरी 7 रोज में टैक्स कलेक्शन के लिए डिफॉल्टर गाड़ियां बंद करने का हुक्म भी दे दिया गया। 30 जून तक लाहौर समेत पंजाब भर में टोकन टैक्स वसूली के लिए सख्त इकदाम की हिदायत की गई है। दस्तावेजात के मुताबिक हिदायत की गई है कि टोकन टैक्स वसूली के लिए ETOs की सरबराही में सुबह 8 से शाम 5 बजे तक नाकाबंदी यकीनी बनाई जाए। टोकन टैक्स वसूली और कार्रवाइयों की रिपोर्ट रोजाना DG ऑफिस भिजवाई जाए। टोकन टैक्स अदायगी तक कोई भी गाड़ी सिस्टम अनब्लॉक नहीं की जाएगी। हाजिर है कि लाहौर समेत पंजाब भर में सालाना 17.5 लाख से ज्यादा गाड़ियां टोकन टैक्स अदा करती हैं। 9.25 लाख गाड़ी मालिकान टोकन टैक्स की मद में 9 अरब रुपए की अदायगी की है। 8.5 लाख गाड़ी मालिकान के जिम्मे 9 अरब से ज्यादा की अदायगियां ज़ेर इल्तवा हैं। बिजली के भारी बिलों से निजात का फार्मूला हिट नेट मीटरिंग के तहत बिजली की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा किया गया। सोलर से बिजली की पैदावार 2000 मेगावाट से तजावुज कर गई है। लेस्को में कनेक्शंस की तादाद 1,35,000 से ऊपर चली गई। 1204 ज़ेर इल्तवा नेट मीटरिंग दरखास्तें PITC पोर्टल पर मुंतकिल। लेस्को में नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत बिजली की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। शमसी तवानाई से बिजली की पैदावार 2। लेस्को रीजन में 1,35,837 नेट मीटरिंग कनेक्शंस नस्ब हो चुके हैं। ताहम 9 फरवरी से कबल मौसूल होने वाली 1,204 ज़ेर इल्तवा नेट मीटरिंग दरखास्तें ऑनलाइन पोर्टल पर मुंतकिल कर दी गई हैं। 9 फरवरी के बाद मौसूल होने वाली दरखास्तों पर नेट बिलिंग पोर्टल पर कनेक्शंस होंगे। हाजिर है कि 9 फरवरी के बाद नेट मीटरिंग की सलाहियत और लोड बढ़ाने पर नेट बिलिंग रेगुलेशंस लागू होंगी। लेस्को चीफ मोहम्मद रमजान भट्ट के मुताबिक सार्फिन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और बरवक्त सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। और यहाँ आपको बताएं कि कानून साजों को कानून सिखाने का मिशन। पंजाब असम्बली में अब हंगामा राई नहीं पढ़ाई होगी। अरकान असम्बली के लिए नया रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम। अरकानी असम्बली की क्लासेस के लिए करोड़ों मुख्तस किए गए हैं। हर MP को दाखिला नहीं मिलेगा। मंसूबे का कुल तखमीना 1 अरब 37 करोड़ रुपए से तजावुज कर गया है। अरकान पंजाब असम्बली को बाकायदा पार्लिमानी रवायात पढ़ाने की तैयारी कर ली गई। इस मकसद के लिए पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज एंड रिसर्च बनाया जाएगा। बजट में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज एंड रिसर्च के लिए 6 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। मंसूबे का कुल तखमीना 1 अरब 37 करोड़ से जायद लगाया गया है। मंसूबा माली साल 2028-29 में पाए तकमील को पहुँचेगा। इंस्टीट्यूट में अरकान को बाकायदा पार्लिमानी कवायद व ज़वाबित सिखाए जाएंगे। इंस्टीट्यूट में अरकान को पार्लिमानी टोल्स के बारे में बताया जाएगा। अरकान असम्बली को सेशंस दिए जाएंगे कि कानून साजी कैसे मौसर और बेहतर की जा सकती है। अरकान को तहरीक इल्तवा कार तहरीक इस्तेहकाक का बेहतर इस्तेमाल बारे बताया जाएगा। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज एंड रिसर्च में फिलहाल सिर्फ अरकान असम्बली और मुतलका अफसरान के लिए बनाया जाएगा। इंस्टीट्यूट पीपल हाउस की 2 इमारतों की ताज़ीन व आराइश करके बनाया जाएगा। पंजाब इकनॉमिक ग्रोथ स्ट्रेटजी की तैयारी शुरू कर दी गई। हुकूमत पंजाब 5 साल मुआशी हिकमत अमली तरबियत देगी। ज़राअत सनत पर खास तवज्जो होगी। सर्विसेज, मौसमियाती तब्दीली, ह्यूमन कैपिटल और गवर्नेंस को भी अहमियत दी जाएगी। पंजाब में 5% औसत शरह नमू का हदफ रखा गया है। हुकूमत पंजाब ने सूबे की आइंदा 5 साला मुआशी सिमत के तयन के लिए पंजाब इकनॉमिक ग्रोथ स्ट्रेटजी 2026 से 31 की तैयारी शुरू कर दी। पंजाब इकनॉमिक ग्रोथ स्ट्रेटजी में साबका मुआशी हिकमत अमली 2018 से 23 की कारकर्दगी का जायजा भी शामिल किया गया है। नई हिकमत अमली में ज़राअत, सनत, सर्विसेज, मौसमियाती तब्दीली, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट और गवर्नेंस को मरकजी फोकस एरियाज करार दिया गया है, जबकि मईशत के ढांचे, सरमायाकारी, लेबर मार्केट, बेरोजगारी, मैक्रो इकनॉमिक फोरकास्टिंग और सेक्टरल ग्रोथ मॉडल का भी तफसीली जायजा लिया जाएगा। साबका ग्रोथ स्ट्रेटजी के तहत पंजाब में 5% औसत शरह नमू का हदफ मुकर्रर किया गया था। ताहम हकीकी ग्रोथ 4.4% तक महदूद रही। सनती शोबे की कारकर्दगी सबसे कमजोर रही। निजी सरमायाकारी 11.5% GDP के हदफ तक ना पहुँच सकी। तरक्याती अखराजात भी मुकर्ररा हदफ के मुकाबले में औसतन सिर्फ 2/3 तक महदूद रहे। पुलिस अफसरों और एहलकारों की मौजें अलाउंसेस की मद में 99 अरब 82 करोड़ 48 लाख 61 हजार रुपये मुख्तस। फिक्स डेली अलाउंस की मद में 18 अरब 10 करोड़ 18 लाख और 30 हजार मुख्तस। एलीट फोर्स अलाउंस 7 करोड़ 47 लाख और 26 हजार रुपए होंगे, जबकि हाउस रेंट की मद में 5 अरब 22 करोड़ मिलेंगे। पंजाब के नए माली साल में अफसरान और एहलकारों के अलाउंसेस की मद में 99 अरब 82 करोड़ 48 लाख 61 हजार रुपए मुख्तस किए गए। फिक्स डेली अलाउंस की मद में 18 अरब 10 करोड़ 18 लाख और 30 हजार रुपए मुख्तस किए गए हैं। एलीट फोर्स अलाउंस 7 करोड़ 47 लाख और 26 हजार रुपए मुख्तस किए गए। हाउस रेंट की मद में 5 अरब 22 करोड़ 76 लाख और 59 हजार रुपए। सीनियर अलाउंस 87 लाख और 78 हजार रुपए मुख्तस किए गए। कन्वेंस अलाउंस की मद में 4 अरब 61 करोड़ 58 लाख और 58 हजार रुपए मुख्तस किए गए। वॉशिंग
अलाउंस की मद में 28 करोड़ 12 लाख और 91,000 रुपए मुख्तस किए गए हैं। ड्रेस अलाउंस की मद में 5 करोड़ 26 लाख और 65,000 रुपए, एंटीग्रेटिव अलाउंसेस 3 करोड़ 97 लाख और 48,000 रुपए मुख्तस किए गए। हार्ड एरिया अलाउंस 50%, रनिंग बुनियादी तनख्वाह पर 36 करोड़ 17 लाख और 36,000 रुपए मुख्तस किए गए। एडहॉक अलाउंस 2010 के मुताबिक 23 करोड़ 68 लाख और 73,000 रुपए, व्हीकल मरम्मत की मद में 2 करोड़ 69 लाख और 90,000 रुपए मुख्तस किए गए। रिस्क अलाउंस की मद में 31 करोड़ 88 लाख और 89,000 रुपए और पहाड़ी इलाके अलाउंस 76 लाख और 65,000 रुपए मुख्तस किए गए हैं। तालीमी अलाउंस की मद में 8 करोड़ 42 लाख और 44,000, मेडिकल अलाउंस की मद में 3 अरब 32 करोड़ 14 लाख और 62,000 रुपए मुख्तस किए गए। हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस की मद में 12 लाख और 99,000 रुपए, एडिशनल पे अलाउंस की मद में 26 करोड़ 90 लाख और 36,000 रुपए मुख्तस किए गए हैं। स्कूलों के लिए जारी फंड्स में करोड़ों के घपले, डीईओ से माली इख्तियारात वापस ले लिए गए। माली इख्तियारात 15,000 स्कूलों को सौंप दिए गए हैं। असातिज़ा की तनख्वाही और दीगर बजट अब स्कूलों के अकाउंट में मुंतकिल होगा। फंड्स के लिए स्कूल सरबराहान को दफातर के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। स्कूलों के लिए जारी करोड़ों रुपए के फंड्स में माली बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। डीडीईओ से माली इख्तियारात वापस ले लिए गए। माली इख्तियारात 15,000 प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को सौंप दिए गए। असातिज़ा की तनख्वाहें और दीगर बजट अब डेप्यूटी डीईओ के बजाय स्कूलों के अकाउंट में मुंतकिल होगा। फंड्स के हसूल के लिए स्कूल सरबराहान को डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के दफातर के चक्कर नहीं काटना पड़ेंगे। नॉन सैलरी बजट खर्च करने के लिए स्कूल सरबराहान को डिप्टी डीईओ से मंजूरी लेना पड़ती थी। जराये के मुताबिक डिप्टी डीईओ किए बगैर फंड्स की मंजूरी नहीं देते थे। वाज़ेह है कि इससे कबल प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के बजट के इख्तियारात डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स के पास थे।